اس کے احکام کے استرداد کا حوصلہ کون کر سکتا ہے؟ جزیرہ توری کے سردار سمورال نے سختی سے کہا، میں تمہاری رائے سنے نہیں حکم دینے آیا ہوں، میں نے حکم سن لیا ہے۔ میں نے بھی اس لہجے میں جواب دیا، مقدس اقبلہ سے کہنا کہ اسے طاقت اور سرکشی کے کھیل پسند ہیں تو مجھے طاقت اور سرکشی کی اجازت دے، وہ مجھے جزیرہ توری سے باہر بھیجنے کا بندوبست کرے، اس طرح مجھے اپنے بازوؤں کے زور اور جسم کے شور کا تماشا دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ ایک معمول اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس طرح میں بہت سے مظاہرے دیکھنے سے بچ جاؤں گا جو یہاں رہ کر مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ یہ میرا پیغام ہے، مقدس کاہن، تم اسے پہنچا دینا۔ تمہیں اس پر اسرار زمین کی مقدس ملکہ اقبلہ کی غیر معمولی بصیرت اور طاقت پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کی روشنی میں قدم اٹھانے چاہیے۔ سمورال نے معنی خیز انداز میں کہا، میں اس کا غلام ہوں اور غلام کو اپنے آقا کی بصیرت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا تھا یہاں غلاموں کے درجے مقرر ہے، مثلاً ایک غلام تم ہو، ایک کوئی سردار، ایک اس کا نائب، ایک عام آدمی، مگر میں غلطی پر تھا۔ غلام تو غلام ہوتا ہے۔ تم یہاں سے دوبارہ اپنے قبیلے میں واپس جا سکتے ہو تاکہ میں انہیں اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میں زندن سے واپس آ رہا ہوں، اور ان سے کہوں کہ وہ ایک جشن منائیں۔ میرے جوابات سے سموال کے ماتھے پر فکر اور اعتدال کی شکنیں ابھری۔ اس نے مزید گفتگو سے پہلوتہی کی اور واپس چلا گیا۔ میں باہر آیا تو قابو نگرانی کے لیے موجود نہیں تھے۔ میں سمندر کی طرف نکل گیا۔ جسم سے 3.5 ماہ کی دھول اتارنے کے لیے میں نے سمندر میں اپنے قدم ڈال دیے۔ دور روز تک میں یوں ہی بے سروپا جنگل میں آبادی سے دور دور گھومتا رہا۔ بستی میں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی۔ وہاں ترغیب تھی، جنگل میں اونچے درخت تھے جو شفیق سایہ دیتے ہیں، اور جانور تھے جو محبت کے لیے ترستے ہیں، اور پانی تھا جو جسم و جاں میں تری رکھتا ہے۔ تیسرے روز جب میں ایک درخت کے سائے تلے ایک ہرن سے کھیل رہا تھا کہ میرے بائیں کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، وہاں کا بہن اعظم سمورال کھڑا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا، مقدس اقبلہ کی طرف سے تمہیں جزیرہ امسار جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں سید جابر بن یوسف الباقر تاریخ بر اعظم کی طلسمی سرزمین کے 3 قبیلوں کا سردار ہونے کے باوجود ایک زندہ میں محبوس کر دیا گیا تھا۔ جب میں زندہ سے آزاد ہوا تو میں نے اپنے قبیلے سے کنارہ کشی کر لی اور جنگل جنگل گھومتا رہا۔ مجھے آزاد ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ شاید یہ ایک احتجاج تھا، اور اتنی مدت گزارنے کے بعد اس طلسم خانے میں مہذب دنیا کے ایک شخص جابر بن یوسف کو احتجاج کا یہ حق ضرور حاصل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک جبری نیند خود پر طاری کر لی تھی اور آبادی کی طرف جلد رخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ سرسبز و شاداب جنگل اور سمندر کا کنارہ مجھے تمام تفکرات اور اندیشوں سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ میں سبز پتے سوندھی زمین اور سمندر کی تازہ ہوا میں سونگھتا پھرتا تھا۔ میرا مستقبل کیا ہے اور مجھے کہاں تک جانا ہے یہ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ میں کب تک ان شبدوں سے جاں بر رہ سکوں گا اور کب میرے اعصاب جواب دے جائیں گے؟ مستقبل پر ایک گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بہت آسان تھا کہ آزاد ہونے کے بعد میں دوبارہ آبادی کا رخ کرتا اور غلاموں پر حکم چلا کر اپنی مجروح انا کی جراحت مندمل کرنے کی کوشش کرتا۔ میں اسی آبادی میں چلا جاتا جہاں نوجوان لڑکیاں اور شرحین موجود تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر سر جھکانے والے ہزاروں جانور اشاروں کے منتظر تھے، مگر میں وہاں نہیں گیا۔ وہاں جا کر کیا کرتا۔ اقتدار میں بڑی زنجیریں ہوتی ہیں۔ اقتدار میں جن محرومیوں کا احساس ہوتا ہے، عام زندگی میں اتنی بڑی محرومیاں نہیں ہوتی۔ اقتدار ہمیشہ محدود ہوتا ہے، اور پھر اقتدار پر ایک بالا اقتدار کی تلوار شکتی رہتی ہے، اور ہر افتدار اپنے مقتدر لوگوں کے ساتھ بے مروتی کا اظہار کرتا ہے۔ اقتدار ایک نازک اور نامتبر شے ہے جو چھن جاتا ہے، سکڑ اور پھیل جاتا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ کبھی مطمئن زندگی بسر نہیں کرتے جو مقتدر ہوتے ہیں۔ میں مہذب دنیا میں رہ کر کبھی اتنا وسیع اختیار و اقتدار حاصل نہ کرتا، لیکن یہ اقتدار ایک زندہ کا اقتدار تھا۔ ہر مقتدر شخص ایک جیلر ہوتا ہے جو خود بھی زندہ میں رہتا ہے، اور اسے ہمیشہ یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ قیدی فرار نہ ہو جائے۔ قیدی فرار ہو جائیں گے تو جیلر کے وجود کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جیلر کا وجود قیدیوں سے مشروط ہے۔ جزیرہ توری میں یہی کیفیت تھی۔ میری حیثیت ایک جیلر کی تھی۔ میں خود ایک قیدی تھا، ایک قیدی جو چھوٹے قیدیوں کو حکم دینے کی مقدرت رکھتا تھا۔ میں آبادی کی طرف نہیں گیا جب اچانک کاہن اعظم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے میرے خوابوں سے بیدار کیا اور یہ اطلاع سنائی کہ الف قابلہ کی طرف سے مجھے جزیرہ امسار جانے کی
इजाज़त दे दी गई है तो मुझे अपनी समात और वजूद पर शुबा हुआ। मैंने काहिन आज़म समोराल की आंखों में झांक कर देखा, वहां समंदर की सी गहराई थी। उन नज़रों में कुछ तलाश करना मुश्किल था। मैं चंद लम्हे अपने आप से उलझता रहा और फिर एक टहनी दो हिस्सों में तकसीम करता हुआ एक अज़्म के साथ उठा और मैंने काहिन आज़म के सामने गर्दन झुका दी। तुमने सुना मैंने क्या कहा है? समोराल ने संजीदगी से कहा। हाँ, मैंने एक मुख्तसर खामोशी के बाद कहा। मैंने सुन लिया है। जजीरा उमसार में ने ज़ेर लब दोहराया। मुक़द्दस अक़ुबला ने आखिर अपने ग़ुलाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील कर दी है। हम सब इसके ग़ुलाम हैं, इसके फ़ैसलों को देवताओं की ताईद हासिल है। समोराल ने अजनबियत के साथ कहा। इसने तुम्हारे लिए एक मौका फराहम किया है कि तुम उसके और अपने दरमियान फासला कम से कम करो। फासिला? मेरे लहजे में तंज शामिल हो गया। फासले की बात खूब कही तुमने मुक़द्दस समोराल, कभी ये फासला दूर करने की सही कर रहे हैं। अंगरवामा के जलील अलकदर फाजिल भी। ये फासला ना जाने कब से कायम है और कब तक कायम रहेगा। ये फासला जितना कम होता जाता है, दूरी का एहसास बढ़ता जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ ये इत्तला देने आया था। मेरे पास नापसंदीदा बातें सुनने की मोहलत नहीं है। तुम 3 रातें गुजारने के बाद यहां से उमसार रवाना हो सकते हो। उन 3 रातों में तुम उमसार जाने के लिए देवताओं की खुशनुदी हासिल करोगे और जारा काका की खिदमत में कुर्बानियां पेश करोगे, अगर तुम ऐसा करना चाहो। समोराल ने रूखे पिन से कहा। मेरी बातों में नापसंदीदगी का उनसर शामिल है तो मैं माजरत खा हूं। मैंने बजुज से कहा। मुक़द्दस काहिन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे ज़हन में बहुत से तसव्वुर मांद पड़ गए हैं। मैं तुमसे अपनी गुज़िश्ता तलखियों पर भी माजरत खा हूं। मैं 3 महीने की इस तन्हाई में कई बार मुश्तिल और कई बार नादिम हुआ हूं। आखिर नदामत मुझ पर गालिब आ गई है। मुझे एहसास है कि ताना वतन नाराज़ी विशिकात के लफ्ज़ यहाँ मतरूक हैं। मैंने कैद के दौरान अपने निहा खाना दिल से आलूदगी घर चने की कोशिश की है। अब मुझे फासलों की दूरी या कमी का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन इस ठहराव और सुकूत से मौत की बो आती है। जाबिर बिन यूसुफ। जजीरा तोरी के मुअज़्ज़ज़ सरदार समोराल मोहतात अंदाज में बोला। उमसार जाने की इजाज़त खुद एक इजहार कुर्बत है। ये सआदत बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। अगर तुमने दूर अंदेशी, एहतियात से और अपने अर्द गिर्द देख कर चलना शुरू किया तो आइंदा इससे बड़ी सातों की तवक्को रख सकते हो। एहसास कुर्बत ही बहुत कुछ है। तुमने एक मुख्तसर अरसे में इससे कुर्बत के तालिब इल्मों में अपना नाम नुमायां करा लिया है। समोराल बहुत रुक रुक कर अपना माफ़ी और ज़मीर अदा कर रहा था। वो बहस और हुज्जत से गुरेज़ा नज़र आता था और अपने फ़राइज़ यानी इत्तला देने और हुक्म मुंतकिल करने के काम के मामले में इस वक्त बहुत मुस्तैद मालूम होता था। शायद इसने अजनबियत का ये वतीरा मेरे जज्बाती बयानात और तल्ख ओतंदरवी से आजिज़ आकर इख्तियार किया था। मैंने ये अजनबियत ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। इस दरख्त के गिर्द कोई राज़दाराना बात की भी नहीं जा सकती थी और न ही मुझे समोराल से मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस होती थी। मुझसे कहा गया था कि मैं उमसार जाऊं। मैं उमसार जाने के लिए तैयार था। मुझसे कहा जाता कि तुम जहन्नम में जाओ, मैं जहन्नम में जाने के लिए कमर बस्ता हो जाता। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उमसार जाने का मैं खुद ख्वाहिशमंद था। तारीख बर्रे आज़म के इस जजीरे को बाज़ इख्तियारात से मुनफरिद हैसियत हासिल थी। ये मेरी फ़जीलत और ताकत की बरतरी की मंजिल थी। फ़जीलत और ताकत ही से इस सरजमीन में सर बुलंद करके चला जा सकता था। हम तमाम मुहज़्ज़िब लोग किया यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते, और लोग तो यही करते, मगर सरंगा और जाबिर बिन यूसुफ को ये महकूमी और कनात पसंद नहीं थी। इस सरजमीन के पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, मगर इस सरजमीन के अंदर बहुत से रास्ते थे। एक मुबहम सी उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई रास्ता नजर आ जाए। समोराल की इत्तला से मेरे जिस्म की राख में कोई चिंगारी सी लपकी और उसके रुखसत होते हुए मेरा जिस्म गर्मी से बाकायदा तपने लगा। उमसार और बीज़नार उन्हें सर कर लिया गया तो तारीख बर्रे आज़म में मेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा और मैं यहाँ एक मकसद ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। मैंने मुहज़्ज़िब अंदाज में समोराल के हाथों को बोसा दिया और आबादी की तरफ जाने लगा। शाम गुजर चुकी थी और रात ने अपने मेहरबान बाजू तोरी के बाशिंदों के लिए वा कर दिए थे। चलते चलते मेरे प्रागंदा ज़हन ने मुझे वरगलाना शुरू किया। अजीज़ी जाबिर, क्या तूने इस अमर पर भी गौर किया कि अक़ुबला ने इस मौके पर क्यों तुझे जजीरा उमसार भेजने की इजाज़त दी है? मैंने अपने ज़हन को समझाया। बाज रह, क्या इसमें भी तुझे कोई पहलू नज़र आ रहा है?
मुझे और परेशान ना कर, लेकिन मेरे ज़हन को करार नहीं आया। इसने मुझे उकसाना शुरू कर दिया। वो चाहती है कि तो तोरी की सरहदों से दूर चला जाए ताकि महज़िब नौजवान शरइड यहाँ मकबूलियत हासिल करके इसके करीब हो जाए। वो अब इसी की तरफ माइल है। मुझे अपना खून खोलता हो महसूस हुआ। नहीं, मैंने खौफ से कहा। कैसी अहमकाना दलील है, क्या वो शरइड को मेरी मौजूदगी में मर्तबों से नहीं नवाज सकती? क्या इसे मेरा इतना ख्याल हो गया? क्या वो सिर्फ उन्हीं उमूर के बारे में सोचती रहती है? ये भी तो मुमकिन है कि इसने अपनी और मेरी कुर्बत का जवाज़ पैदा करने के लिए मुझे उमसार जाने की इजाज़त दी हो ताकि मैं कामयाबो कामरान होकर उसकी तलब का सही सजावार तस्लीम किया जा सकूं और वो एक बरगुज़ीदा शख्स जाबिर बिन यूसुफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लम्हे वक्फ कर सके। ठीक है, इस आसमान से बिजली गिरे आ ज़मीन मेरा बोझ बर्दाश्त करने से गुरेज करे। अगर उमसार में मैंने कोई कारनामा अंजाम ना दिया तो मेरी वापसी का कोई सवाल नहीं होगा। मैं जजीरा उमसार के मुतालिक अपने ज़हन को कायल और आमादा करता हुआ आबादी में दाखिल हो गया। उनका सरदार एक मुख्तसर मुद्दत के बाद उन्हें फिर नजर आया था। वो अपने सरदार की इस आर्जी रुपोशी के आदी हो चुके थे। चुनांचे जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने इसी तरह मेरा इस्तकबाल किया जो एक सरदार की आमद पर तोरी की रवायत बन चुका था। मैं जिंदा से वापस आया था, लेकिन उनके चेहरों पर मेरे मतूब होने के मलाल की कोई रमक नजर नहीं आ रही थी। आते आते मैंने वो पते जुदा कर दिए थे जो मेरे जिस्म से लेटे हुए थे। अब मैं सुरतापा बरहना था, हाँ, जिस्म के चंद हिस्से मेरे नवादिर ने छुपा लिए थे। मकान तक पहुंचते पहुंचते फरार भी मेरी वापसी के जुलूस में शामिल हो गया। खिलाफ तवक्को वो मुझे अपने सामने देखकर खुशी से नाचने लगा। सरिता भी दौड़ी दौड़ी आ गई। इसके साथ अमरीकी लालकी जीना भी थी, जो अभी तक मुझे सहमी हुई नजरों से देख रही थी। दूसरे दिन सुबह मैंने दोनों कबीलों के तमाम लोगों की मौजूदगी में जजीरा उमसार के सफ़र का ऐलान किया और मुख्तलिफ लर्जा खेज रस्में अंजाम देकर जारा काका की मुक़द्दस रूह की खुशनुदी हासिल करने का वजीफ़ा जारी रखा। कबीले के अफराद जारा काका की इबादत के वक्त बदमस्त हो जाते थे। वो दायरा बनाकर दीवाना वार रक़्स करते रहे। उन्होंने एक दूसरे के जिस्म नेज़ों से छेदे और उनसे छलकता हुआ खून अपनी मुट्ठियों में जमा करके फिजा में उछालते रहे। ये वजीफा दोपहर तक जारी रहा। मैंने अपना हाथ बुलंद करके जारा काका की इबादत में मसरूफ थके हुए लोगों को रोका। वो निढाल होकर मेरे सामने इस्तादा हो गए और मैंने अपने जिस्म की सारी ताकत मुज्तमा करके ऐलान किया, जजीरा तोरी के बाशिंदों, तुम्हारा सरदार उमसार जा रहा है। अपने सरदार की रवानगी तक कुर्बानियां पेश करो और उसकी कामरानी के लिए जारा काका की रूह को राजी रखो कि जब वो कामरान वापस आएगा तो मुकद्दस अकुबला से और ज्यादा करीब होगा और तुम्हारा इलाका एक अजीम सरदार का मरकज रहेगा। जब मैं अपना ऐलान खत्म कर चुका तो फिजारो जार मैं और तोरी के दूसरे सर बरावर वो लोगों ने मेरे सामने इताअत का अहद किया। उनका मजमा मुंतशिर हुआ तो मैंने देखा मुहज़्ज़िब नौजवान मजमा चीरता हुआ तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो मेरे करीब पहुंच गया और उसने अपना सर मेरे कदमों में डाल दिया। मैंने इसके बाल पकड़कर उसका चेहरा बुलंद किया। शरीद की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लजाजत थी। यही वो मनहूस शख्स था जिसने बूढ़े जाहिद की खानका में मेरी तवील इबादत में दखल अंदाजी की थी। इस वक्त सरंगा की देवी मुझे मुतनब्बे करने आ गई थी और यही वो शरीर नौजवान था जिसकी वजह से मुझे 3 कबीलों के सरदार को मतूब होना पड़ा था। इसे अपने रूबरविद के कर में सख्त मुस्तरिब हो गया। मेरा हाथ उठते उठते रह गया। मैं इसकी आंखें निकाल लेता और उसका चेहरा नोच लेता, मगर मैंने एक झटके से इसके बाल छोड़ दिए और फिजारू को इशारा किया कि वो इस नौजवान को मेरे सामने से उठाए ले। फिजारू और ज़ारमै ने संग दिली से इसे दोनों शानों से पकड़कर खड़ा किया। शरीद ज़ारमै और फिजारू के दरमियान मचल रहा था। सैयदी जाबिर, वो अंग्रेजी में मुझसे मुखातिब हुआ। मैं मुहज़्ज़िब दुनिया का एक शख्स हूँ, यकीन करो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुमसे कभी गद्दारी नहीं कर सकता। वो फरियाद करने लगा। इसकी फरियाद से मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने नफरत से ज़ारमै को हुक्म दिया, इसे मेरे सामने से दूर करो और मेरी अदम मौजूदगी में इसे कबीले का कोई काम ना सौंपो। इसे इसकी झोंपड़ी में शराब और औरतें और ग़िज़ाएँ फराहम करते रहो। नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। शरीद ने चीख कर कहा, मेरे साथ इतना जुल्म मत करो। मैं कोई काम करना चाहता हूँ। मुकद्दस सरदार, तुम मुझे कोई अहम काम सौंप कर तो देखो। शरीद ने गुड़गड़ा कर कहा, तुम्हें कोई अहम काम सौंपा जाए? मैंने कुछ सोच कर कहा। फिर मैंने फिजारों को हुक्म दिया कि इसे मेरे पहलू में खड़ा किया जाए।
शरीद को मेरी नशिस्त के बाईं तरफ खड़ा कर दिया गया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वफादारी और इताअत का यकीन दिलाने के लिए वो पूरी तरह मुस्तैद है। इसका जिस्म पारे की तरह थिरक रहा था। मैंने दोबारा अपनी नशिस्त पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में मजमा को मुखातिब किया। कौन है वो जिसके करम से हमारे जजीरे पर पानी बरसता है और जिससे हमारे बाग हरे भरे रहते हैं और हमारे जानवर धूप से लुत्फ उठाते हैं? वो कौन है? मजमा पर गहरी खामोशी मुसल्लत थी। मैंने खुद ही कहना शुरू किया, वो कोई भी हो, लेकिन इस ज़मीन पर हम जिसके तवस्सुत से अपनी आसूदगियों के लिए दुआ मांगते हैं, वो जाराका की रूह है जो आसमानों में बाज अरफा और आला ताकतों से हमारी सिफारिश के वास्ते सरगर्दा रहती है, जो जाराका की मुकद्दस रूह है। हमें यही बताया गया है और जो कुछ बताया गया है वो हमारी ही फलाह के लिए है, क्योंकि हमारा ज़हन बहुत मुख्तसर है और हम बहुत सी बातें जाने से कासिर हैं। बस हम जिसे जानते हैं वो जाराका की मुकद्दस रूह पर कुर्बान होते हैं, और जो कुर्बानियों के फ़राइज़ अंजाम देते हैं वो अमान में रहते हैं। मैं उमसार जाने से पहले जाराका की मुकद्दस रूह को खून में गुस्ल देना चाहता हूँ। मुझे खून की ज़रूरत है। कौन है वो जो अपना खून पेश करने के लिए तैयार है? वो सईद और इसार पेश शख्स सामने आए। मेरे गैर मुतवक्के ऐलान से मजमा में सनसनी सी दौड़ गई। एक लम्हे के लिए वो सब गुम हो गए। कौन है वो मुतबर्रिक शख्स? मैंने चलाकर कहा। वो मेरे सामने आए और गर्दन झुका दे। मेरे तखातुब में इतना जाओ जलाल था कि हजारों अफराद का मजमा लर्जा बरंदाम हो गया। एक मुकम्मल सुकूत, मौत की सी खामोशी। मैंने मुस्करा के उन्हें देखा और एक तायराना नज़र उधर से उधर हुजूम पर डाली। वो सख्त तजब्जुब का शिकार थे। मैंने फिर उन्हें पुकारा। मुझे यकीन नहीं था कि सबसे पहले शरीद अपनी गर्दन झुकाए मेरे सामने आएगा। जब मैंने इसको देखा तो शश डर गया। जैसे ही शरीद सामने आया, तमाम लोगों ने अपने सर झुका दिए। वो सब जाराका की मुकद्दस रूह पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे। औरतें, मर्द, जो जहां खड़ा था इसकी गर्दन झुकी हुई थी, और तमाम मजमा में सिर्फ सरीता ही एक वाहिद लड़की थी जिसका सर बुलंद था। इसके करीब जीना खड़ी थी और मेरी खादमाएं थीं। सरंगा की लड़की सरीता एक कम गो मासूम मगर बड़ी सरकश लड़की साबित हो रही थी। इसने मुझे और मैंने इसे घोर कर देखा। इसका सीना फूला हुआ था और गर्दन तनी हुई थी। यही लड़की शुरू में अपनी बरहनगी पर बुरी तरह शर्मा जाती थी। मैंने इसे गौर से देखा। वो हसन विशबाब की एक नादिर तख्लीक नजर आ रही थी। इसके बदन में गुदाज पैदा हो गया था। सर्वकत तीखी लाला रुख। तुम सब, मैंने सरीता के शबाब से नजरें बचाकर कहा, तुम सब जाराका की मुकद्दस रूह पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो। तुम्हारा ये इसार यकीनन जाराका को खुश रखेगा, मगर मुझे सिर्फ एक शख्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मुहज़्ज़िब नौजवान शरीद ने अपना सर पेश किया था, मगर इसे पहले जाराका अलिफ की रूह ने अमान दी है, इसलिए इसकी कुर्बानी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, नौजवान शरीद को इस सादत से महरूम नहीं किया जाएगा। वो खुद तो कुर्बान नहीं हो सकता, अलबत्ता वो अपने किसी अजीज तरीन दोस्त को कुर्बानी के लिए पेश कर सकता है। नौजवान शरीद को इजाज़त है कि वो अपने बजाय किसी और का नाम पेश करे, किसी ऐसे शख्स का जो उसके बहुत करीब रहा हो और जिससे वो अपनी कुर्बत साबित भी कर सके। मेरे ऐलान पर शरीद लरजने लगा। मुझे इसका जवाब मालूम था। मैंने सरीता की तरफ देखा। वो मुझे शोलाबार नजरों से देख रही थी। उसके करीब खड़ी हुई जीना की आंखें फटी हुई थीं। तुम किसका नाम तजवीज़ करोगे? मैंने ज़हरखंद से पूछा। शरीद ने अपने होंठ भींच लिए। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से ये लफ्ज़ अदा हुए, मुअज़्ज़ज़ सरदार खुद ही उसका फैसला कर दे। इस जजीरे की सारी आबादी मेरे करीब है और सबसे ज्यादा कुर्बत में मुअज़्ज़ज़ सरदार से रखता हूँ। मैं जानता हूँ नौजवान शरीद, मैं जानता हूँ तुझे मुझसे किस दर्जा लगाव है। मैंने शररबार लहजे में कहा, सुने दरीदा दहन, मैं जाराका की रूह पर कुर्बान होने के लिए हमा वक्त तैयार रहता हूँ, मगर यहाँ मैं खुद कुर्बानी तलब कर रहा हूँ। मुझे मालूम है यहाँ कौन तुझे सबसे ज्यादा अजीज है। बेहतर है इसका नाम तो अपनी जुबान से ले। करीब था कि शरीद मुझ पर झपट पड़ता, मगर उसके दाएं बाएं फिजारू और जार में खड़े थे। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, कुर्बानी का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी कर और जजीरा तोरी की जमीन पर रहने का जवाब साबित कर। शरीद के लिए जीना का नाम लेना आसान काम नहीं था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में मुब्तला था। मेरे इसरार और रुखी पर इसने झुंझला कर सरीता की तरफ इशारा कर दिया। ये इसने मुझ पर दूसरा हमला किया था। मैं इसे सबसे करीब समझता हूँ। इसने वहशत से कहा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, उसकी कुर्बानी पेश कर दो।
तो जारा काका की मुकद्दस रूह के साथ मजाक करता है। तुझे बदतरीन अजियत से 2-4 कर दिया जाएगा। मैंने देवड़ कर कहा। ओ नासमझ नौजवान, तो एक मुअज़्ज़ज़ सरदार की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। खुदा तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। शरीद ने रोते हुए कहा। मुझसे क्यों पूछते हो? तुम फैसला करने का इख्तियार रखते हो, जो चाहो करो। ये कहते हुए वो तेजी से पीछे हट गया और आना फाना मजमा में रुपोश हो गया। जारा काका की मुकद्दस रूह गवाह रहे। मैंने चीख कर कहा, और इसे यह कुर्बानी कबूल हो। नौजवान शरीद को सामने लाया जाए ताकि वो अपनी अजीज हस्ती की कुर्बानी खुद पेश कर सके। मैं जानता हूं वो कौन है। वो महज़िब दुनिया से आई हुई अमरीकी लड़की जीना है। जीना बेहोश होकर गिर गई। मैंने देखा सरिता ने इसके सर पर हाथ रखकर उसके माथे को बोसा दिया और उसके कान में कुछ कहने की कोशिश की। फिर एक कहर की निगाह दौड़ाती हुई हुजूम में गुम हो गई। थोड़ी ही देर में हवास बाख्ता जीना को पकड़कर मक्तल की तरफ ले जाया गया और शरीद को पकड़कर उसके हाथ में एक गुंडा सा दे दिया गया। इस वक्त हुजूम में ऐसा शोर बरपा हुआ कि करीब की आवाज सुना भी मुश्किल हो गया। बेमहाबा ढोल ताशे बजने लगे। लोग बेसरोपा अंदाज में उछलने कूदने लगे। हर तरफ चीख पुकार थी। उन्होंने मक्तल के गिर्द दायरा तंग कर लिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पागल खाने का दरवाज़ा खिल गया हो या कैदी फरार हो रहे हो। वो मतबर्रिक खून का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूटने लगे। अमूमन औरतों को कुर्बान करने की रस्म अंजाम नहीं दी जाती थी, मगर ये कोई मतरूक चीज नहीं थी। मैं अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया ताकि नीचे कुर्बानी की मुकद्दस रस्म अपनी आंखों से देख सकूं। नौजवान शरीद के हाथ कांप रहे थे। इसने जीना का सर अपनी आगोश में ले लिया और इसे सीने से लगाकर ज़ार और कतार रोने लगा। बेहोश जीना की आंखें पत्थर आ गई थीं। कबीले के बरगुजीदा लोग शरीद की अतराफ में खड़े थे। ज़ार में और फिजारू भी वहीं पहुंच गए थे। कुर्बानी की यह रस्म पहले से मुख्तलिफ नहीं थी। इसकी तफसील खासी दर्दंगेज और खूंरेज है। जीना के रुखसारों को बोसे देने के बाद शरीद ने किसी जबर से इसका सर कलम किया। मैं देख नहीं सका। इस वक्त मेरा दिल चाहा था कि मैं ये हुक्म वापस ले लूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था। जो फैसले देवताओं के नाम पर किए जाते हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाता था। मैंने दूर से इतना देखा कि जीना का लाशा फड़क रहा है और उसका ताज़ा खून नीचे रखे हुए बर्तन में जमा किया जा रहा है। इस खून में जारा काका की खोपड़ी को गुस्ल दिया गया और इसमें से एक कदर सबसे पहले मेरी खिदमत में पेश किया गया। फिर शरीद को अपनी मंगेतर अपनी महबूबा का खून पीने के लिए दिया गया और इबादत गुजारों ने वहां पर असरार रस्में अदा की। शरीद खून पीकर पागलों की तरह इस रक्स में शामिल हो गया जो कुर्बानी के सिलसिले में जारी था। फिर यह हुआ कि खून हासिल करने के लिए लोग बर्तन पर टूट पड़े और देखते देखते जीना की लाश और उसके खून का नाम ओ निशान तक मिट गया। शाम होते हुए जलसागाह दिरहम बरहम हो गई। मुझे अपने नायबीन के जलों में आबादी तक पहुंचाया गया। आज रात और फिर आने वाली रात, जिस तक मैं तोरी के इलाके से ओझल ना हो जाऊं। सारा कबीला इबादत में मसरूफ हो चुका था। जब मैंने अपने मकान में कदम रखा तो मुझे सबसे पहले ये खबर दी गई कि सरिता अपने घर वापस नहीं आई है। गो मैं बहुत थका हुआ और मुजमहिल था, लेकिन मैं इसकी तलाश में समंदर के किनारे तक निकल गया। सरिता मुझे कहीं नहीं मिली। आखिरी थक कर मैं वापस आ गया। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। मेरा ख्याल था कि अब मैं इत्मीनान से उमसार की जानिब रवाना हो सकूंगा और मुझे यकीन था कि शरीद अरसी तक ये खूनी खेल अदा रखेगा और अब इसे एक सरदार के मर्तबे से आगाही हो गई होगी। वो चूंकि एक जज्बाती और हसास नौजवान है, इसलिए इस पर इस सदमे का असर देर तक कायम रहेगा। मुझे बताया गया कि शरीद की ज़हनी हालत अबतर है और वो रात भर अपनी झोंपड़ी में हज़ियान बकता रहा है। इसने वो तमाम बर्तन तोड़ दिए जिसमें उसके लिए ग़िज़ाएँ और मशरूबात भेजे गए थे। इसने सारी रात कर्ब और बेचैनी में गुजार दी। मुझे ये सुनकर कोई ख़ास मसरत नहीं हुई। मेरे दिल और दिमाग का तकद्दुर जीना की मौत के बाद भी दूर नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जीना की रूह मेरे सामने खड़ी है और मातम कुना है। मैं एक मजबूत असाब का शख्स कई बार रात को सोते में हड़हड़ा कर उठ बैठा।